Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is match the column of antonyms asked in the IBPS, RRB, PO and clerk examinations as well as IBPS clerk मेंस examinations. इस तरह के क्वेश्चन में you are given two columns and each column is provided with थ्री वर्ड्स. आपको दोनों कॉलम्स के वर्ड्स को पढ़ना है और एक कॉम्बिनेशन या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस, कम से कम एक, अधिक से अधिक दो कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटोनीम्स सेलेक्ट करना है. यदि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज. तो टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. कॉलम 1 के वर्ड्स हैं ए ब्लैंडिशमेंट, बी इंड्यूसिंग, सी एब्सकॉन्ड. एंड कॉलम 2 के वर्ड्स हैं डी डिनंशिएशन, ई एंड्यूर एंड एफ फेटर. You must have a good word power, otherwise it will be impossible for you to solve such questions. Let us have an explanation of each of the words given in two columns. Number A, blandishment. It means a flattering or a pleasing statement or action used as a means of gently persuading someone to do something. चाटुकारिता, चापलूसी से काम कराने वाला स्टेटमेंट या कोई एक्शन. नंबर बी आपका है इंड्यूसिंग, सक्सीडिंग इन परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग. यानी आपका ए और बी लगभग सिनोनिमस है. नंबर सी एब्सकॉन्ड मीन्स टू रन अवे, नॉट एबल टू एंड्यूर, टू एस्केप, भाग जाना, फरार हो जाना. नंबर डी कॉलम 2 में डिनंशिएशन, डेप्रेशिएशन, निंदा, उपहास, हार्श क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन. नंबर ई एंड्यूर, टू सफर समथिंग पेनफुल और अनकंफर्टेबल विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत के हर कुछ झेल लेना. स्टूडेंट्स, आपका एब्सकॉन्ड नंबर सी एंड एंड्यूर नंबर ई एंटोनीमस हो रहा है. एब्सकॉन्ड कुछ भी झेल नहीं पाना, भाग जाना, निकल जाना. एंड्यूर स्टे करना और झेलना बिना शिकायत के. यानी एक कॉम्बिनेशन आपका मिला, C abscond and E endure antonymous. Fetter, a chain or a rope-like structure, generally a chain used to tie a prisoner round the ankle in order to keep him in the prison. बेड़ी जो पैरों में निचले हिस्से में एंकल के पास लगाई जाती है, संख्या में 2 होती हैं, अतः बेड़ियां फेटर्स. आपका नंबर ए है ब्लैंडिशमेंट और ये मैच कर रहा है नंबर डी से एंटोनिमसली. यहां है प्लीजिंग, फ्लैटरिंग, यानी ए काइंड ऑफ प्रेज, प्रशंसा. डिनंसिएशन, डेप्रिशिएशन, सेइंग अगेंस्ट समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज हार्शली. यानी दूसरा पेयर आपका ए और डी का बन जा रहा है. एंटोनिमस यानी हमारा ऑप्शन 2 कॉम्बिनेशंस का होना चाहिए, सीई ए डी. अब देखते हैं, ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं और कहाँ इस तरह का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है.
ऑप्शन नंबर ए देखिए, CEAD आपको मिल गया, यानी आपका ए मैच कर रहा है एंटोनिमसली डी से और सी चला जा रहा है एंटोनिमसली ई के साथ। राइट आंसर इज 10 नंबर ए, CE abscond, endure, AD blandishment, denunciation. Other options are easily eliminated. B, C, D and E low, eliminated. The right answer is number A, blandishment, antonymous with denunciation. Number C, abscond, antonymous with number E, endure. The right answer is CE and AD, option number A. Let us come to question number 2. कॉलम 1 के वर्ड्स हैं A, opprobrium, B, pellucid, C, topper. कॉलम 2 के वर्ड्स हैं D, tinted, E, puissant and F, vertigo. Let us have their meanings in order to select the right option of antonyms either in one combination or in two combinations. If no combinations are found out, the answer will be number E, none of these. Let us see. Opprobrium means harsh criticism, censure, varsana, ninda, denunciation. Pellucid, translucently clear, transparent, पारदर्शित. Number C, topper, a state of physical or mental inactivity, lethargy, laziness, sluggishness. Column 2 के वर्ड्स हैं D, tinted, slightly colored. Number E, puissant, having great influence or power. Number A, vertigo, a symptom that makes you feel like you or the world around you is spinning or moving. Giddiness, dizziness, अस्थिरता, चक्कर आना. Students, number A, opprobrium, harsh criticism, tinted, puissant, vertigo, tinted, slightly colored, puissant, having great power or influence, vertigo, giddiness, मैच नहीं कर रहा है. Pellucid, translucently clear, transparent, tinted, slightly colored. ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार दिखाई पड़ने वाला. टिंटेड, स्लाइटली कलर्ड, यानी थोड़ा सा आर पार देखने में असुविधा. यानी बी और डी एंटोनिमसली टू सम एक्सटेंट मैच कर रहा है. बी और डी डिसाइड करते हैं, देखेंगे ये कहां मिलता है. टॉर्पर, लिथार्जी, लेजीनेस, स्लाइटली कलर्ड नहीं. पुशेंट, हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस और पावर, यहाँ लेजीनेस है और वहाँ पावर है, यानी एक्टिविटी का सेंस नहीं आ रहा है. वर्टिगो, गिडीनेस. सी का एफ से कुछ हद तक मैच हो रहा है, लेकिन नॉट, नाइदर एब्सोल्युटली नॉट रिलेटिवली. एक ऑप्शन टू सम एक्सटेंट हमारा मैच कर रहा है और वो है बी, पेलुसिड, डी, टिंटेड से. अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके. ऑप्शन बी, डी, यस मैच कर गया. यस, पेलुसिड, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल लगता ही नहीं कि बीच में कुछ है, बट यहां टिंटेड, स्लाइटली कलर्ड दिखाई पड़ता है कि कुछ है. बिल्कुल क्लियर तो नहीं, लेकिन कुछ
क्लैरिटी है। इसका मतलब है कि बी और डी एंटोनिमस हैं। आपको एब्सोल्यूट एंटोनिम्स में नहीं जाना, रिलेटिव एंटोनिम्स में जाना है। पेलिसिड ट्रांसपेरेंट, टिंटेड नॉट फुल्ली ट्रांसपेरेंट, स्लाइटली कलर्ड, यानी बी और डी का मैच हो रहा है। बाकी ऑप्रोब्रियम एंड टॉपर का नाइदर पुशेंट नॉर वर्टिगो। ऑप्रोब्रियम हार्श क्रिटिसिज्म, सेंश्योर, वर्टिगो गिडीनेस, ये कोई मैच नहीं है। लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस। वी हैव गॉट ओनली वन कॉम्बिनेशन, बी पेलिसिड एंड डी टिंटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हेंस बी सी एफ आपका मैच, बी डी तो मैच कर जा रहा है, बट एफ एंटोनिमसली मैच नहीं कर रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। हार्श क्रिटिसिज्म, गिडीनेस। सी ई भी एलिमिनेटेड हो गया। सी आपका टॉपर, ई पुशेंट, कोई रिलेशन नहीं आ रहा इसमें। नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन तो मिल गया, अतः ये भी एलिमिनेटेड। दस द राइट आंसर इज बी डी, पेलिसिड टिंटेड आर एंटोनिमसली रिलेटेड। इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है, जो कि आपको खुद करना है, ओनली यू कैन डॉक्टर योरसेल्फ इन दिस मैटर, it will be very easy, quite easy for you to solve such questions. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।